Varun Prabhu, can you hear me? Yes, Prabhu. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Oh, Dandavat Pranam. Okay, thank you so much. Oh, Ram Prabhu is here, huh? Okay, and so then we are ready to start this program. We will start today. We will start with a special Vaishnav bhajan because today is a Vaishnav festival. We will talk about it little bit, and फिर हम भगवद गीता में हमारे आगे के chapters में चलेंगे. Thank you so much for those who are ready for the class, for the discussion with the cameras on, and thank you all for coming. So let us start this. I will be sharing this screen. मैं screen share कर रहा हूँ, and we will sing this. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori. This is a Bengali bhajan, but we will also discuss the meaning. So try to repeat at your own places. Try to participate in singing this bhajan, and then we will try to understand the meaning. Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Saparshada Sriyadama Shavatari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Prabhashada Sriyadama Shavatari
Everyone can try to sing little bit. Hare Rama, Hare Rama, Rama
Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki. Thank you very much. So we go with the invocation prayers now, and then we start the rest of the chapter 2 of Bhagavad Gita. So kindly, all the devotees, I will request you to recite these prayers together. I think आपको ये prayers कहाँ पर है? ये भगवद गीता के section में है, starting में. So you please recite. Open the Bhagavad Gita introduction, and the prayers are there. I am also sharing here. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपदां च गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै मच्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी
बौद्धवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Thank you very much and welcome once again to all the wonderful devotees, those who have taken out time for coming for this program. So we sincerely thank and welcome all of you once again. So today, आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 को एक तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे टुगेदर. I know last time the network was not very supportive, so we will try to complete today, Krishna willing. But before that, today is a special day. Any one of you knows what is special about today? Any idea? Only Anil Prabhu knows. Anything special? Okay. Yes, Anil Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Dhanavad Pranam Prabhu. श्रीला गदाधर पंडित appearance day for. Oh, very nice. Thank you. So, yes, so today is a very special day. Today is the appearance day of one of the dear associates of the Lord. तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं, भगवान अपने साथ में भगवान के सारे पार्षद यानी कि उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनकी जो टीम है पूरा, भगवान अपनी टीम के साथ में अवतरित होते हैं. क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान अपने दिव्य पास टाइम्स यानी कि दिव्य लीलाओं को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो कि जिसको भगवान खुद भी रेलिश करते हैं और भगवान के सारे डिवोटीज उसको रेलिश करते हैं. तो उन दिव्य लीलाओं में भगवान के साथ उनकी पूरी टीम होती है. जैसे जब कृष्ण स्वयं भगवान प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो उनके साथ उनके बहुत सारे एसोसिएट्स जैसे कि नंद महाराज, यशोदा मैया, देवकी मैया और उनके वसुदेव, बहुत सारे उनके सखा, बलराम, सुबाल, मधुमंगल, इवन बहुत सारे मॉन्कीज फ्रेंड्स भगवान के, ये सारे भगवान के साथ आते हैं ताकि भगवान का जो पास टाइम है वो बहुत सुंदर हो पाए. पूरा टीम जो है वहां पे प्रकट होते हैं. तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य. व्हाट? एनीवन नोस? तदा तदा स्वजाभ्याम परित्राणाय साधूनां दुष्टताम धर्म संस्थापनाय संभवामि योगे योगे. संभवामि युगे. तो भगवान अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं. और खास तौर से ये जो एज है, जिस एज में हम रह रहे हैं अभी, हम कौन से एज में रह रहे हैं अभी? इज इट सतयुग? समवन वाज सेइंग इट इज सतयुग. क्या ये सतयुग है? हम कौन से कलियुग? कलियुग. कलियुग. कलियुग, द एज ऑफ कलियुग इज कॉल्ड द एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी. क्वेरल मतलब जहां भी देखोगे देयर विल बी सम काइंड ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन. या तो देशों के बीच में, अभी यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, चाहे वो विजिबल हो या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ फाइटिंग चल रहा है देशों के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग पड़ोसियों के बीच में, और अपने माइंड और सेंसेस, इंटेलिजेंस, इसके बीच में भी फाइटिंग चलता रहता है. सो दिस इज कलियुग, द डार्क एज. दिस एज इज द डार्क एज. तो आप बताइए कि सतयुग में भगवान के कौन से अवतार हुए थे? सतयुग में भगवान के कौन से अवतार प्रकट हुए थे? किसी को नहीं पता? हाँ, यस, उषा माता जी. राम के रूप में प्रभु जी. हाँ, राम के रूप में. सतयुग. राम. कल के अवतार. हाँ, श्री राम. श्री राम सतयुग में. कल के अवतार त्रेता युग में हुए थे श्री राम जी. श्री राम जी तो वामन अवतार. वामन अवतार.
वामन अवतार हुए थे, है ना, और भी कुछ अवतार हुए थे। लेकिन उसके बाद भगवान राम त्रेता युग में कौन हुए? भगवान राम, हाँ, त्रेता में राम, भगवान राम। उसके बाद द्वापर युग, द्वापर द्वापर में श्री कृष्ण। द्वापर में श्री कृष्ण। ये तो बिल्कुल गलत बताया आप लोगों ने, गलत। द्वापर में श्री कृष्ण, नहीं, द्वापर में श्री कृष्ण तो अवतार नहीं थे, श्री क्योंकि कृष्ण भगवान, तो खुद ही भगवान है। हाँ? द्वापर में भगवान राम। कृष्ण तो खुद ही भगवान है। तो आपने सही बोला कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे, लेकिन भगवान अवतार नहीं है। भगवान जो है अवतारी हैं, यानी कि भगवान से सब अवतार होते हैं। भगवान सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, इसलिए भगवान अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? अवतारी। वो उनसे सारे अवतार होते हैं। तो आप बोलोगे कि भगवान तो द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग से उससे पहले कैसे बाकी अवतार आ गए फिर? क्योंकि अब सब अवतारों के कारण तो आप भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, कृष्ण तो बाद में आए, है कि नहीं? लेकिन ये जो कृष्ण अवतार हैं, कृष्ण जो आते हैं इस द्वापर युग में, वो क्या है? स्वयं भगवान। तो भगवान ऑलरेडी, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम, जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम, सभी का अवतारों के भी कारण जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है। उन्हीं से ही सब प्रकट होते हैं। तो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सभी अवतारों के कारण भी कृष्ण ही है। लेकिन इस युग में, द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, स्वयं खुद ही आ जाते हैं, अवतार नहीं लेते, खुद ही आ जाते हैं। बोले मैं खुद ही जाता हूं इस बार। तो ये है कौन से अवतार? ये कौन से भगवान प्रकट होते हैं द्वापर युग में? परम भगवान, स्वयं भगवान। इसलिए बोलते हैं स्वयं भगवान, स्वयं, सेल्फ सेम कृष्णा, सेल्फ सेम कृष्णा, सेम कृष्णा, वही कृष्णा जो गोलोक, जो भगवान के गोलोक वृंदावन में है, वो कहाँ पे प्रकट होते हैं? भौम वृंदावन। भौम वृंदावन मतलब जो अर्थ पे जो वृंदावन है, ये जो मथुरा में जो वृंदावन है, जो यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश उसमें आता है, लेकिन एक्चुअली वो किसी बाउंड्री से डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान का धाम है। वो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे हमेशा भगवान निवास करते हैं, उसी का यहाँ पे जब प्रकट हो जाता है पृथ्वी पर, तो उसको बोलते हैं भौम वृंदावन। और भगवान भी अपने धाम भी आते, भगवान का धाम भी प्रकट होता है और भगवान भी खुद आ जाते हैं, स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या है? अवतारी। अब आप बताइए कि द्वापर युग के बाद कौन सा युग आया? कुछ लोग तो क्लास में हैं, बाकी लोग कलयुग आई। हाँ, कलियुग। कलियुग, प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ कलियुग, द डार्क एज। इस एज में कौन से अवतार हैं भगवान के? बताइए। प्रभु जी, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। second is Kalki avatar that will be in future. कल की अवतार, कल की अवतार कलयुग के एंड में आएंगे। कलयुग का जब एंड होगा, अभी 4 लाख लगभग 27,000 साल बाद आएंगे। तब तक हम लोग पता नहीं कहाँ, कौन कौन से कहाँ होंगे। हो सकता है हम लोग भगवान के धाम में हो, नहीं भगवान के धाम जा पाएंगे तो यहीं किसी योनियों में भटक रहे होंगे बार बार, और उस समय बड़ा खतरनाक होगा सिचुएशन। भागवतम में ऑलरेडी लिखा है, ओ माय गॉड, एक एक 2-2 फुट के लोग होंगे उस समय। हमारा हाइट जो है 2 फुट का होगा लोगों का। और अभी जैसे सूर्य की गर्मी होती है, हम कहते हैं बहुत गर्म है, उस समय ऐसा लगेगा सूर्य से आग निकल रहा है पूरा, मतलब आग जैसा एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऐसा, तो इस तरह से, सॉरी प्रभु जी, it is in real like a drop. We will like a drop. वे लाइक है Prabhu ji, drop. ड्रॉप। Yes, Prabhu ji, after many lifetimes in Kaliuga. हाँ हाँ, Prabhu ji, it is in real. yeah, it will be like this. Already we are moving in that direction. आप देख सकते हो कलयुग ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रहा है ना। पहले लोगों का एज लंबा होता था, अभी छोटा होने लगा एज। हमारे जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मुझे याद है कि मेरे परदादा जी, ही डाइड एट 105 और समथिंग, इट वाज क्वाइट लॉन्ग। अभी 105 की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये 2-3 जनरेशन में इतना डिग्रेडेशन हो गया कि अभी 70 साल में, 60 साल में लोग, है ना, इवन नॉर्मल भी जो है, कोई ज्यादा सीरियस बीमारी भी नहीं होता, तब भी लोग
चले जाते हैं। सो वी कैन सी सच ए ड्रास्टिक फॉल। और कलयुग के जब 4,27,000 साल और हो जाएंगे, सोचिए क्या होगा उस समय। इट विल बी वेरी कैओटिक। एनीवे, तो कल के अवतार भगवान के आएंगे लास्ट में इस कलयुग के। लेकिन अभी भगवान के कौन से अवतार हो चुके हैं कलयुग में, वो कौन बताएगा? एक अवतार भगवान के ऑलरेडी आ चुके हैं। अंजलि माता जी बता रही हैं। यस अंजलि माता जी। जी प्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो इस कलयुग के अवतार है। कलयुग में कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जो हम ये भजन गाते हैं ना, जो ये श्लोक गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के अवतार, भगवान अपना जैसे मैंने बताया पूरे टीम को लेके आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जब कृष्ण आते हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बीच में जो येलो क्लोथ्स में है चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके साइड में जो ब्लू क्लोथ्स में है वो है नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। ही इज नन अदर देन कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु इज इक्वल टू कृष्ण। एंड नित्यानंद प्रभु in the blue clothes, he is actually Balaram. He is Balaram. And if you look at this side, if you look at this arrow, I don't know if you can see that. So this is Gadadhar Pandit, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. This is Advait Acharya. The white, one second, I put this on you. So this is, ये जो white, ये यहाँ पे जो है जो थोड़े से वृद्ध हैं वो है अद्वैत आचार्य। एंड यहाँ पर जो है इस साइड में ये है गदाधार पंडित। और ये जो यहाँ पर है ये है श्रीवास आचार्य। श्रीवास आचार्य। तो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और श्रीमती राधा रानी वो किसके रूप में आते हैं? वो आते हैं गदाधार पंडित के रूप में। तो आप सोचेंगे राधा रानी तो मतलब फीमेल हैं और गदाधार पंडित तो मेल हैं, तो ऐसा कैसे? तो ये इस पूरी क्रिएशन में केवल एक ही पुरुष है, दैट इज ओनली वन पुरुष, दैट इज वो कृष्ण। एवरीवन एल्स इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा एंड एवरीवन एल्स इज thus फीमेल, like that. So this is Lord Shri Krishna, Balaram, Srimati Radharani, and this is Advait Acharya. Advait Acharya is the incarnation of Mahavishnu, and Narad Muni comes as Srivas Pandit. तो नारद मुनि जो है वो श्रीवास पंडित के रूप में है। तो अभी जो हम भजन गा रहे थे वो आज इसलिए गा रहे थे क्योंकि आज गदाधार पंडित, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गदाधार पंडित जी का विग्रह है, ये जो डीटीज हैं ये फ्लोरिडा में मेरे ख्याल से वहां से हैं, हमारा जो इस्कॉन का मंदिर है। तो ये आज गदाधार पंडित जी का अपीयरेंस डे है, यानी कि आज के दिन गदाधार पंडित प्रकट होते हैं। तो अभी हम जो भजन गा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से आते हैं किसके लिए? चैतन्य भगवान के हर एक अवतार का कुछ विशेष कारण होता है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान क्या करने आते हैं? क्या भगवान के आने का विशेष कारण होता है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो खुद से भगवान अपनी भक्ति कैसे करना है वो सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं एक भक्त के रूप में आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग भारत में वो चैतन्य महाप्रभु को एक साधु के रूप में जानते हैं, बस वो ये नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार हैं ये क्या हिडन है? हिडन मतलब गुप्त अवतार है, छन्न अवतार। दैट मीन्स इट्स नॉट पब्लिकली, most people don't know, but those who are devotees of Krishna, they know कि चैतन्य महाप्रभु is none other than Krishna himself. तो अभी हम ये जो भजन गा रहे थे स्टार्टिंग में, आप जो लोग उस समय थे,
तो हम गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षद श्रिय धामा सह अवतारी। तो उस बहुत सुंदर भजन था ये। इस भजन में क्या बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, जीवों पर दया करने के लिए क्या करते हैं, स्वपार्षद, अपने पार्षदों के साथ, पार्षदों मतलब अपने एसोसिएट्स, अपनी टीम के साथ, स्वीय धामा, अपने धाम से, सह अवतारी, वो क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस कलयुग में ये आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बीच में, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक विशेष चीज और भी है कि चैतन्य महाप्रभु है तो स्वयं कृष्ण, लेकिन जो उनका जो मूड है, जो उनका जो दो चीजें उनकी श्रीमती राधा रानी की हैं, एक तो उनका मूड और एक उनकी कांति। कांति मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन। जैसे श्रीमती राधा रानी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन की, तन तप्त कांचन गौरांगी, शी इज गौरांगी, गौरांगी मीन्स गोल्डन, लाइक राधा रानी का कलर कैसा है, जस्ट लाइक मोल्टन गोल्ड। जैसे गोल्ड इज ब्यूटीफुल बट मोल्टन गोल्ड इज इफल्जेंट, तो श्रीमती राधा रानी इज लाइक दैट। तो चैतन्य महाप्रभु का भी जो कांति है, जो उनका कलर है, दैट इज, इट इज नॉट ब्लैकिश। कृष्णा इज ब्लैकिश बट चैतन्य महाप्रभु इज गोल्डन, गौर, इट्स लाइक गोल्डन। एंड चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, क्या करने के लिए, अब इस अवतार का विशेष पर्पस क्या है, इस अवतार का विशेष पर्पस है क्या, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कोरी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। जो सबसे दुर्लभ चीज है इस पूरे क्रिएशन में, बहुत सारी मुश्किल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज है, सबसे जो दुर्लभ है, सबसे जो रेयर है, वो क्या है, टू गेट प्योर लव ऑफ कृष्णा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को, कृष्ण प्रेम को देने के लिए, उसी वो प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद अवतार लेते हैं। जैसे कि अगर कई बार पिताजी को कुछ बच्चे को सिखाना हो, कि सपोज वो बच्चे को घोड़ा बनना चाहता है वो बच्चा, और पिताजी को सिखाना चाहते हैं, तो पिताजी को खुद घोड़ा बन के दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसे चलो, ऐसे घोड़ा बनो, है कि नहीं, ऐसे सिखाते हैं ना, क्योंकि वो करके दिखाना पड़ता है। तो इस तरह भगवान भगवत गीता में बोले कि यू सरेंडर टू मी, लेकिन टू टीच हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं और वो सिखाते हैं कि भक्ति जो है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसका एसेंस क्या है, कैसे जो है शरणागति, सरेंडर का जो भाव है उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, व्हाट आर डूज, व्हाट आर डू नॉट्स, व्हाट इज फेवरेबल टू भक्ति, व्हाट इज नॉट फेवरेबल टू भक्ति, ये सारा कौन सिखाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। और अल्टीमेटली आते किसने, चैतन्य महाप्रभु के अवतार, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिन गौरा तिसे नमः। दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु आते हैं किसके लिए, चैतन्य महाप्रभु आते हैं कृष्ण प्रेम प्रदाय में, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो दोस्त हु आर इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का शरण लेते हैं, उनकी शिक्षाओं का शरण लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं का शरण लेकर वो इस लाइफ के गोल को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। वो अपने लाइफ के गोल, क्या लाइफ का गोल जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो शिक्षाएं किसकी हैं, स्वयं कृष्ण की। तो उनके जो एक डियर एसोसिएट हैं गदाधर पंडित, आज उनका अपीयरेंस डे है, आज के दिन गदाधर पंडित यानी कि श्रीमती राधा रानी अवतरित होते हैं गदाधर पंडित के रूप में, और उनके बहुत सारे दिव्य सुंदर पास टाइम्स हैं मायापुर में। तो इसलिए हम आज के दिन प्रे कर सकते हैं गदाधर पंडित से, चैतन्य महाप्रभु से, कि ये जो हमारा जर्नी है भगवत गीता को समझने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का,
हम भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम बहुत बड़े स्कॉलर बन जाएंगे, बहुत बड़े पंडित विद्वान बन जाएंगे। हम भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझ पाए कि भगवान हमसे चाहते क्या है, what Krishna wants from us, how we can become very dear to Krishna. We want to become dear to Krishna. We just don't want to become scholars. स्कॉलर्स तो बहुत हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं। आप में से कैसा लगेगा अगर आपको दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन है स्कॉलर बनना, बहुत ज्ञानी बन, बहुत ज्ञान हो गया आपको, और दूसरा है दैट वी गेट लव ऑफ कृष्णा। सो व्हाट इज बेटर? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू Love वांट? of Krishna. You want love of Krishna. We just don't want to. Of course, we will also become learned. We will also become scholar. जैसे आप ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आप learned होते जा रहे हैं, आप समझते जा रहे हैं। लेकिन जो गोल है, the goal of life is to get love of Krishna. That is the purpose of this life. तो वो कैसे प्राप्त करना है, वो हमें कौन सिखाते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं। भगवान अपना ही खुद ही सिखाते हैं, अपना ही भक्ति। अपने आचरणों सिखाएनु भक्ति, यानी कि अपने ही आचरण से भगवान क्या है? भक्ति सिखाते हैं। तो आज बहुत स्पेशल डे है। गदाधर पंडित इज ए magnanimous personality because Srimati Radharani is so kind. So Gadadhar Pandit, being Radharani herself, is so kind. So today is a good opportunity to pray for the mercy of Gadadhar Pandit. Shri Gadadhar Pandit ki jai. No one is saying jai. So बोल रहे हैं हमारी जय. जय 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 Okay. जय। Good, good. म्यूटेड है प्रभु जी, कैसे जय बोले? Sorry? Sorry, what you said? इससे ये भी पता चल जाता है सब लोग जगे हुए हैं, इसलिए भी मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ बीच में। Sometimes we sleep, you know, sweet जब कुछ भाषण चल रहा होता है तो नींद भी जल्दी आता है। Okay, so then taking the blessings of Gadadhar Pandit and also taking all of your blessings, आप सबके blessings को लेते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता में आगे चलने का प्रयास करते हैं। And let's see, Krishna willing, we will try to cover chapter 2 this evening. So where were we? If you remember, if any one of you remembers, last time we left somewhere in between because of the poor network. And if you remember, which verse we were discussing? किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु वर्सेस जी। नंबर 41 and 42 प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. 41 and 42. Very nice, very nice. So let's continue from there, है ना? हम कुछ verses को पढ़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। So can someone read the meaning of text 41? दोबारा से हम 41 से continue करते हैं। व्यवसाय, I am reciting the shloka. व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. Can someone read the translation, please? Please प्रभु unmute. कृष्ण प्रभु जी। Anything. पढ़ो प्रभु जी। मैं पढ़ूं? Okay, Divya Mataji. Prabhu ji. Prabhu, I'm reading in English. Okay, please go ahead. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. Oh, beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are resolute in many branches, faith meaning unsplaining, trust in something, sometime, when one is engaged in the beauty of Krishna. Hare Krishna. Mataji, only the translation आपने पढ़ा, so thank you. So we will now discuss this shloka little bit more. तो बहुत important श्लोका है कि जो single pointed attention है ना, वो बहुत important है to attain the goal of life. कोई भी goal achieve करने के लिए अगर हमारा intelligent multi branched होगा तो हम क्या कर पाएंगे? हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपने गोल की ओर। इज इट नॉट? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस में बैठे हो या अपने घर में,
अभी इतने सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क आ गए हैं, उधर से एक व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, एक टीम्स पे मैसेज आ रहा है, एक मेल आ रहा है ना, ट्विटर पे कुछ आ रहा है। तो इतने सारे जब मैसेज एक साथ आते हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में जब हम होते हैं, तो वी आर अनेबल टू फोकस। हम कुछ काम कर भी रहे होते हैं तो उधर से मैसेज बजता है, फिर उधर से मैसेज बजता है कि नहीं? सो इस तरह से हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कैसा चाहिए? रेजोल्यूट। तो यहाँ पे बता रहे हैं, वन, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो हमारे कैसा इंटेलिजेंस चाहिए? भगवत, हमें लाइफ को सक्सेस, कोई भी गोल को पूरा करने के लिए हमें कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए? व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब we will be resolute, we will be fixed, focused, right? और इसमें फिर बहुत सुंदर फेथ को एक्सप्लेन किया गया है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। सो फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग फेथ। जब हम ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति के प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं, तो एक भक्त को पूरा फेथ होता है। क्या फेथ होता है? अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अभी जो हम भजन भी गा रहे थे, उस भजन में भी आगे जाके एक लाइन, बहुत सुंदर ये लाइन आता है, ये बहुत सुंदर भजन है, आप इसको याद भी कर सकते हो। इसमें क्या एक लाइन आता है, इसमें बताते हैं क्या? षडंगा शरणागति होए बेजहार। तो जो शरणागति है, जो सरेंडर है, लोग कहते हैं सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर की छह तरीके से सरेंडर को समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति सरेंडर हो, उसका क्या मतलब है? सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि हम बंदूक किसी ने लगाया और हम दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं आई विल फॉलो योर ऑर्डर। दैट इज नॉट सरेंडर, दैट इज फोर्स सरेंडर। लेकिन यहाँ पर कौन से सरेंडर की बात की गई है? व्हेन वन वॉलेंटरली सरेंडर्स। जैसे कि अर्जुन भगवान को वॉलेंटरली सरेंडर करते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। बोलते कि नाउ आई एम योर स्टूडेंट, नाउ आई एम ए डिसाइपल, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो दिस इज सरेंडर। तो सरेंडर के 6 जो है लक्षण बताए गए हैं। व्हाट आर द 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर? यहाँ पे लिखे नहीं हुए। 6 सिम्टम्स क्या है सरेंडर के? पहला, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, फेथ दैट कृष्णा will definitely protect me, भगवान मेरा हमेशा रक्षा करेंगे। सेकंड, what is second? Second, that Krishna is the giver of everything. Krishna will give me whatever is necessary. Third, the next item in the list of surrender is that whatever is favorable to Krishna consciousness, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको हम स्वीकार करें। फोर्थ, जो भी भक्ति के प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट। तो इस तरह से शरणागति को एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, 1 2 3 4 5 6। so that is शरणागति। तो यहाँ पे बता रहे हैं when we practice Krishna consciousness we should practice with faith। और फिर हमने अगर आपको याद हो पिछली क्लास में चर्चा किया था, 2 तरह के फेथ होते हैं, एक टेस्टेड फेथ और एक ब्लाइंड फेथ। तो हमें कौन सा फेथ करना है? टेस्टेड फेथ। टेस्टेड फेथ कैसा होगा? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो जो रिजल्ट्स है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, वो हम देख पाएंगे। हम वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमारा जो मटेरियल डिजायर्स है, हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जो हमारे मटेरियल परप्लेक्सिटीज है, ये कैसे हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्ट्रांगली प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा जो प्योरिफिकेशन होगा, और उस प्योरिफिकेशन को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। करेक्ट? तो जो डिवोटी है, इसलिए बहुत बहुत हैप्पीली वो सरेंडर के प्रोसेस को समझना चाहता है ना? तो सरेंडर का जैसे बताया 6 चीजें, हैविंग फेथ कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट, भगवान ही मेरे मेंटेनर हैं, जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको क्या करना? छोड़ देना। और फिर उसका क्या? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज वन आइटम ऑफ सरेंडर। और छठा आइटम है
complete submission, आत्म निक्षेप, that means complete surrender of oneself. तो ये छह लक्षण है. तो एक डिवोटी जो है वो जानते हुए कि ये शरणागति मेरे लिए अच्छा है, वो सरेंडर करता है भगवान को. भगवान को सरेंडर करना मतलब भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना. शरणागति मतलब उनके निर्देश का पालन करना. और भगवान का निर्देश कहाँ प्राप्त होता है? भगवान का निर्देश जो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता में और भागवतम में, हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं. राइट. तो आगे जाके इसमें बहुत सुंदर समझाया है. ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने छोड़ा था लास्ट क्लास. आज भी देखते हैं कितना कवर होगा. So we are not rushing to complete the course. We are trying to understand the important principles. So इसमें बहुत important point था कि service in Krishna consciousness is best practiced under the able guidance of a spiritual master. तो भक्ति जो है वो independent process नहीं है कि मैं कुछ भी करूं. कई लोग कहते हैं मैंने तो भक्ति में ये कर लिया, मैंने तो ये व्रत रख लिए, मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. भक्ति इज ए प्रोसेस वेयर यहाँ पे लिखा इट इज बेस्ट प्रैक्टिस. अगर आप उसको सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है कि एक आध्यात्मिक गुरु के शेल्टर में हम जो है भक्ति को प्रैक्टिस करें, क्योंकि दैट गुरु विल सी दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. जहां पे हम मिस्टेक कर रहे होंगे गुरु विल करेक्ट अस. जहां पे हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है वहां पे हमें एनकरेज करें. तो इस तरह से और हमें पता भी चल पाएगा कि हम सही दिशा में. अदरवाइज क्या होगा, हम जो भी हमारे माइंड में कुछ आ रहा है हम सोचेंगे यही भक्ति है. हमारे माइंड में आएगा कि चलो समोसा खाना है और हमें लगेगा चलो यही हम भगवान को ऑफर कर लेते हैं, यही भक्ति है. लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु का शेल्टर लेते हैं, गुरु टीचेस अस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. एक गुरु का होना बहुत जरूरी है. जैसे आगे जाके 4th चैप्टर में भी आएगा, भगवान खुद कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे वी शुड टेक शेल्टर ऑफ ए एडवांस डिवोटी. गुरु कौन है? गुरु एक एडवांस डिवोटी है हु इज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा. क्योंकि वो सरेंडर के प्रोसेस को कर चुके हैं, सरेंडर के प्रोसेस को जानते हैं, इसलिए हम उनसे सीख सकते हैं बहुत अच्छे से. हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं कि नए तरीके से मैं कुछ सरेंडर करने का प्रोसेस है. राइट. तो इस तरह से भक्ति के प्रोसेस में हम क्या होते हैं, हमारे गुरु हमें, और ये गुरु का जो चॉइस है कि कौन गुरु होंगे. ऐसे नहीं किसी को भी गुरु बना लिया, बचपन में किसी से दीक्षा ले ली तो जी गुरु हो गए जी अब हमारे. वो गुरु मतलब ही शुड बी ए लिविंग person who is guiding us, who is connecting us to Krishna. That is Guru. Guru is not God. Guru जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन Guru is a representative of God. He is the just like cashier. एक कैशियर जो होता है वो बहुत सारे नोट गिनता है बैंक में, लेकिन वो नोट उसके नहीं होते. वो किसके लिए गिनता है? बैंक के लिए गिनता है. वो बैंक के होते हैं नोट, उसका तो 1 रुपया भी नहीं होता उसका तो अपना सैलरी मिलता है. इसी तरह जो गुरु है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है. वो भगवान की शिक्षा हमें देते हैं, और जब हम गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो जैसे एक कैशियर को पैसे देते हैं तो सारा पैसा वो बैंक में डाल देता है आपके अकाउंट में. इसी तरह जब हम गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान को वो सारा रिस्पेक्ट पास ऑन कर देते हैं. तो गुरु इज लाइक ए ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया टू अप्रोच कृष्ण. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाया गया, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा था. यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके एक श्लोक दिया हुआ है इसी में, यस्या प्रसाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वांस्तस्य यशस्वी संध्यां वंदे गुरो श्री चरणरविंदम. It says, by the satisfaction of the spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे से भगवान संतुष्ट हैं कि नहीं? भगवान आके तो शायद आपको नहीं बोलेंगे कि निकिता जी मैं आपसे बहुत खुश हूं. ऐसा I don't know. It is possible, but it is not so easy. At least at this state, it is not so easy. तो इसलिए how do we know कि भगवान की हम भक्ति अच्छे से कर रहे कि नहीं, that Krishna is happy with us or not, that we know by the agency of the spiritual master. Spiritual master
who is a who has no personal motivation. His only motivation is to serve Krishna, please Krishna, and in that relation help others to reach to Krishna. तो now जो गुरु है, गुरु भी हमेशा, क्योंकि गुरु के बहुत सारे डिसाइपल्स हो सकते हैं. गुरु जो है, he may be quite busy, he may be taking care of so many people, thousands of people. So गुरु के कुछ प्रतिनिधि भी, गुरु के भी कुछ प्रतिनिधि होते हैं. जैसे कृष्ण, गुरु जो है कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, ऐसे ही गुरु के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको बोला जाता है मेंटर्स या काउंसलर्स, है ना. तो जो गुरु के बिहाफ पे हमें गाइड करते हैं, जो हमारे से थोड़े ज्यादा सीनियर है, गुरु नहीं है वो लोग, लेकिन हमारे से थोड़े ज्यादा सीनियर हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, जिनको हम लोग मेंटर्स बोलते हैं. तो हमारे इस्कॉन संस्था में एक बहुत सुंदर प्रोसेस है कि कोई भी भक्त है, अगर वो चाहता है तो उसको एक डिवोटी गाइड करते हैं उसको कृष्णा कॉन्शियस स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि जब भक्ति के प्रोसेस में हमारे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी वांट टू नो आंसर्स. हु विल आंसर, हाउ वी विल नो द राइट आंसर्स, और वो आंसर्स भी हमें कहाँ से चाहिए. हमें ऐसे चलते फिरते किसी से नहीं पूछना है, हमें आंसर किससे चाहिए. वी वांट टू नो द राइट आंसर्स फ्रॉम ऑथोराइज्ड सोर्सेस, the someone who is authorized to give the correct answer. Correct. So who is that authorized source? That authorized source is guru, और या तो गुरु या गुरु के प्रतिनिधि. तो जो सीनियर डिवोटीज हैं, कुछ सीनियर डिवोटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉट एवरीवन, कुछ सीनियर डिवोटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, those who know the philosophy of Krishna consciousness, and they can become our mentors. Right? Is it a good idea? तो आप सब भी अगर चाहें, so you can also have mentors in Krishna consciousness. आपके एक मेंटर हो सकते हैं जो कि आपको कृष्णा कॉन्शियस जर्नी में क्या करेंगे, असिस्ट करें, और आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करेंगे. प्रैक्टिकली डे टू डे में आप कैसे कैसे आपके कुछ अलग, हर एक व्यक्ति के अलग चैलेंजेस होते हैं. किसी का ऐसा चैलेंज होता है कि वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके जो घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता है. किसी का कुछ और होता है, किसी को समझना होता है कि मैं चैंटिंग कैसे करूं, कितना करूं, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है. तो बहुत सारे, हर एक का इंडिविजुअल सिचुएशन होता है. तो यहाँ पे जैसे हम क्लास में जो डिस्कस करते हैं, दैट इज अ जनरल फिलॉसफी, जनरल प्रिंसिपल्स, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, then we need someone to become our mentor, right? So we will also be assigning some mentors. For those of you who will like to have mentors, we will assign some mentors. How many of you, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके भी कोई mentors हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में? Please raise your hands. Okay. Oh, many of you want. Yes. तो बस इतने ही लोग, बाकी लोग को mentors खुद ही mentor है. बाकी लोग कह रहे हैं हम अपने गुरु खुद ही हैं, हमें, we know everything, right? So maybe that's a good, maybe you know that. So but yes, some people already have. तो अनिल प्रभु लिख रहे हैं I already have a mentor. So that's very nice. तो हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे पास एक मेंटर हो जिससे हम पूछ पाए, जो हमें समझा पाए, जो हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए. So such a mentor we should have in Krishna consciousness. So because here it is so important, Lord is saying that satisfaction हो, तो हमें जो ये एक प्रोसेस को फॉलो करके ही हम, और ये प्रोसेस हमेशा फॉलो, भगवान राम उन्होंने भी स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट किया. When Krishna and Balaram they went to school, they also accepted spiritual master. गुरु को उन्होंने, जबकि वो खुद ही भगवान है, लेकिन वो एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं how everyone should accept a spiritual master. Okay, so that's we spent quite a good time because this shloka was very important. श्लोका 41 is very important. इसमें कई पॉइंट्स पे डिस्कस हुआ. एक तो इसमें रेजोल्यूट इंटेलिजेंस पे डिस्कशन हुआ, कैसे सिंगल पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए. दूसरा डिस्कशन हुआ फेथ पर, कि फेथ का मतलब है we follow the instructions, we understand these instructions are good for us and we follow them. And third is accepting a guru and following the instructions of that. So ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस श्लोक में हमने कवर की. नेक्स्ट 42 43, कैन समवन जस्ट रीड द ट्रांसलेशन? कौन पढ़ना चाहेगा इसका अनुवाद? एवरीवन कैन लोअर डाउन द हैंड्स सो दैट वी नो द न्यू हैंड्स.
Okay, Nikita Mataji, you want to read, please? The translation? हिंदी हिंदी में है प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा है, हिंदी पढ़िए। ओके। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग तो, थैंक यू माता जी, बहुत सारे लोग तो वैदिक लिटरेचर्स को जानते ही नहीं है, उनकी तरफ जाते ही नहीं। और लेकिन बहुत सारे लोग जो जाते भी हैं वो वैदिक लिटरेचर से कुछ मटेरियल बेनिफिट्स ढूंढते हैं कि ये वैदिक लिटरेचर से या तो मैं बहुत धनी बन जाऊं, है ना, या मेरा बहुत यश फैल जाए, बहुत कीर्ति हो जाए, मैं बहुत फेमस हो जाऊं। तो वो वैदिक लिटरेचर से भी मटेरियल बेनिफिट ढूंढते हैं। लेकिन जो डिवोटी है, जो एक इंटेलिजेंट डिवोटी है, वो जानता है कि वेदों का भी जो पर्पस है, जो वेदांत है ना, दैट इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इट इज नॉट टू बिकम मोर प्रॉस्परस, है ना। तो वेदों में जो ज्यादातर लोग जो वेदों में फंसे रहते हैं, वो कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है, द मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड ऑफ वेदास। फ्लावरी वर्ड्स, फ्लावरी मतलब, है ना, खुश करने वाले। अच्छा, ये करोगे तो तुम बड़े धनी बन जाओगे, ये करोगे तो तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगा, है ना। लेकिन जो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे डोंट वांट दिस फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास। They want what will please the Lord. Because love is highest, and they want to selflessly love the Lord. So unko, and they know by satisfaction of Krishna, ye devotees are very intelligent. It says Krishna Bhakta अति चतुर। कुछ लोग सोचते हैं ये डिवोटीज तो बड़े मूर्ख हैं, वो ये मांग ही नहीं रहे, यश नहीं मांग रहे भगवान से, कीर्ति नहीं मांग रहे भगवान से, कुछ मांग ही नहीं रहे, है कि नहीं। तो वो बस भगवान को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? भगवान को सेटिस्फाई करने से हमें क्या मिलेगा, है कि नहीं। तो लेकिन डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट, वो जानते हैं कि भगवान को सेटिस्फाई करने से ही हमें को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे कि पेड़ की जड़ों में पानी डालने से सभी पत्तों को अपने आप पानी मिलेगा, पेट को खाना खिलाने से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को शक्ति मिलता है। इसी तरह जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, बिकॉज ही इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ होल क्रिएशन, व्हेन वी, एंड जस्ट लाइक इस बॉडी में सेंट्रल पॉइंट क्या है, पेट, पेट को जाएगा सबको मिलेगा। इसी तरह व्हेन वी प्लीज कृष्णा, we become completely satisfied. Not only we become satisfied, the whole world becomes satisfied. कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टे। जो आज दुनिया में इतना वॉर का सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि दे डोंट नो द पीस फॉर्मूला। भगवत गीता में भगवान पीस फॉर्मूला बताते हैं। वो पीस फॉर्मूला क्या है? टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। सारी दुनिया की सब सृष्टि के जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो कौन है? कृष्णा। और हम सब उनके सर्वेंट्स के रूप में वो हम अपने अपने एलोकेटेड कोटा को ले सकते हैं। अगर हम दूसरे के कोटा को लेना चाहेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा? फाइटिंग होगा। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं पीस फॉर्मूला। व्हाट इज दैट पीस फॉर्मूला? सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांतिम रक्षति। इफ यू वांट टू हैव पीस, पीपल विल बी पीसफुल। जैसे कि एक घर में अगर एक चारों बेटे पिता की बात को मानते हैं और पिता कहता है कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे डिवाइड करूंगा, बेटा ये आपका हिस्सा है आप ले लो, ये आपका हिस्सा है आप ले लो, तो उस घर में पीसफुल है। लेकिन अगर वो चारों बेटे आपस में लड़ रहे, पिता की बात को मानते ही नहीं, पिता को ही नहीं मानते, बोले तू कौन है, तुम जाओ, तुम अब बूढ़े हो गए, निकलो इधर से, तो वहां पे क्या होता है? फिर वो चारों बेटे आपस में फाइटिंग करते हैं, कभी केस करते हैं एक दूसरे पे, लड़ाइयां होती हैं, पिटाई करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि पिता सेंटर में नहीं। जब पिता सेंटर में होते हैं, जब पिता को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो नेचुरली उन भाइयों के बीच में सिनर्जी आ जाता है। देखा है आपने कभी ऐसे? जी, आपने कुछ फैमिली देखा है ऐसा कि जहाँ पिता को सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो नेचुरली उस पूरे फैमिली में कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट इज द फादर। सिमिलरली जब हम पूरी क्रिएशन के मास्टर कृष्ण है, जब हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, तो कोई एक दूसरे से फिर फाइट नहीं करता है। जैसे अभी इतना डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है इस वर्ल्ड में, और वो हमेशा रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक लोग, आज यूक्रेन में हो रहा है, कल कहीं और होगा। It will keep going unless people will understand that Krishna is the
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और कृष्ण ने जिसके लिए जो कोटा दिया है हम केवल उसी कोटे को लें, दूसरा का चीज के ऊपर हम अपना अधिकार ना जमाएं। सो दैट इज हाउ डिवोटीज वांट टू वर्क। ओके, नेक्स्ट श्लोका 44 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इट सेज? इट सेज भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पार्थ चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। अगेन यहाँ पे दोबारा से वो क्या वर्ड आया? व्यवसायित्मिका बुद्धि। मैं इस श्लोका को शेयर भी करता हूँ। विल समवन लाइक टू रीड द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका प्लीज? Anubhav Prabhu wants to read. Yes, Anubhav Prabhu. Oh, you are walking. Are you able to read, Anubhav Prabhu? You are muted. Prabhuji 2.44. Yeah. Yes, Prabhuji. So this says, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू प्रभु। तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है कि व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम कमिंग टू कृष्ण, हमें क्या रोकता है कृष्ण में आने, और वो कृष्ण को शरणागत करने के लिए या कृष्ण के भक्ति करने से, वो होता है हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारा इंद्रिय तृप्ति का भाव। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय, सबको एंजॉय तो करना अच्छा लगता है, तभी तो हमें खुशी चाहिए ही हमें, वो हमारा नेचर है। सच्चित आनंद हमारा नेचर है, सच्चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड इटर्नल, ये हमारा नेचर है। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारा नेचर है। सो हैप्पीनेस इज आवर बर्थ राइट, बट when we want to become independently happy, that is a problem. So but when we want to be, जैसे एक ड्राइवर जो है या घर का एक नौकर है, वो नौकर जो है मालिक को कुछ दिए बिना खुद बना बना के हलवा पूड़ियां और बादाम शेक सब पी रहा है, और मालिक को दे ही नहीं रहा, वो नौकर है उस घर में, तो क्या वो सही कर रहा है? वो सही नहीं कर रहा। मालिक उससे नाराज होगा, बोले मेरा प्रॉपर्टी है सारा, तुम इसको मिसयूज कर रहे हो। लेकिन अगर वही नौकर जो मालिक को वो देता है, आप समझ रहे हैं? ये एग्जांपल पता नहीं पहले हमने डिस्कस किया है कि नहीं। मालिक जो है ऑफिस गया है और पीछे से नौकर जो है रामू काका सब बना बना के खा रहे हैं, बादाम फ्राई, काजू फ्राई और है ना मोमो खा बना के खा पी के अपना सो रहे हैं। मालिक जब आएंगे उनको कैसा लगेगा? व्हाट काइंड ऑफ ए सर्वेंट ही, ये सर्वेंट थोड़ी है, ये तो घर का मालिक बना बैठा है, ऐसा ही बोलेगा ना। एक तो ये हो गया। दूसरा सर्वेंट है, वो सब बनाया, उसने भी बनाया, चाय उसने सब बनाया, बादाम शेक और जो जो भी चीज आपको अच्छा लगता है उसने सब बनाया, और फिर उसने आते ही मास्टर को दिया। देन मास्टर विल से, ओ कितना अच्छा ये सर्वेंट है मेरा, और फिर मास्टर उसको बोलेंगे तुम भी खाओ, आप भी एंजॉय करो। सो दैट इज भक्ति। भक्ति मतलब वी वांट टू सेटिस्फाई सेंसेस ऑफ कृष्णा, वी वांट टू गिव सेटिस्फैक्शन टू कृष्णा। और जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, यही बस एक फर्क है डिवोटी और मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति में। जो डिवोटी है वो भगवान को सेटिस्फेक्शन देता है और उससे फिर सारा सेटिस्फेक्शन उसको खुद ही मिल जाता है। और जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो खुद सेटिस्फाई होना चाहता है बस, वो उसके लाइफ में भगवान का कोई रोल नहीं है। वो है तो सर्वेंट, लेकिन उसके लाइफ में मास्टर का कोई रोल नहीं है। वो खुद ही मालिक की चीजों को एंजॉय करता है, मालिक को दिए बिना, मालिक को एक्नॉलेज किए बिना। तो ये मिस्टेक है। मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति का मिस्टेक क्या है कि जो मालिक है, जिसकी सारी वो चीजें हैं, उसको पूछ ही नहीं रहा, उसको भूल चुका है और वो एंजॉय कर रहा है अकेले। तो ये सही है क्या बताइए? एक सर्वेंट अगर मालिक को कुछ दे नहीं रहा है, उसकी सारी चीजें खुद ही यूज कर रहा है, इज इट राइट? सब लोग No, Prabhu. नो प्रभु जी। It's not right. The right thing is to give it to Krishna, to give it to the master, है ना? जिसका है वो उसके प्लेजर के लिए होना चाहिए ना।
तो ये बस एक प्रॉब्लम, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति मतलब वो चीजें तो वो सारी भगवान की यूज कर रहा है लेकिन अपने लिए, और जो डिवोटी है वो सारी चीजें वो भी यूज कर रहा है लेकिन भगवान को सेटिस्फेक्शन देता है, उससे बाद उसको मिलता है, तो दैट बिकम्स मोर स्वीट एंड दैट बिकम्स ऑथराइज्ड, दैट बिकम्स द राइट टू मेथड। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो दो चीजें, who are attached to sense enjoyment and material opulence, भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति, ये दो चीजें हमें भक्ति के मार्ग में, और भी चीजें तो यहाँ पे बता रहे कि ये उनके मन में कभी रेजोल्यूट इंटेलिजेंस नहीं आएगा भक्ति करने का। कई लोग कहते हैं भक्ति करने का प्रभु जी मन ही नहीं लगता है, तो मे बी दिस इज द रीजन दैट too much of sense enjoyment and too much of material opulence is stopping us. Okay, so like that we will move ahead a little bit now faster. There are many things to cover. तो इस तरह से आगे बता रहे हैं. So can someone read the only the translation of the next shloka? Ramesh Chandra Prabhu, you want to read? श्लोक नंबर 45 का. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्लीज रीड. सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेद में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। ओके, तो इतना ही रीड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. सो हियर इट सेज दैट जो तीन गुण, कौन से तीन गुण हैं? व्हाट आर द थ्री मोड्स? सतोगुण, तमोगुण, हरे कृष्णा प्रभु जी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण. रजोगुण और तमोगुण रजोगुण और तमस तो गुण। ये जो तीनों गुण के प्रभाव में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, इन तीनों के इन्फ्लुएंस में जो एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी वो क्या क्या करते हैं, वहां पे उसका जो फ्रूटिव रिजल्ट्स है, उसका वो एक्टिविटीज दे विल लीड टू सम काइंड ऑफ ए रिएक्शन, सम काइंड ऑफ ए रिजल्ट, और वो रिजल्ट जो है वो बाइंडिंग है. उसका जो रिजल्ट है वो हमें क्या करता है, हमें बॉन्डेज कर देता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें बाइंड कर देता है. क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हैं इसका पॉजिटिव यानी कि पुण्य या पाप कर्म रिजल्ट होता है, और उसको एंजॉय या सफर करने के लिए दोबारा से हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ता है. तो हम हमेशा मटेरियल वर्ल्ड में चक्कर लगाते रहते हैं जिसको विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव समथिंग टू एंजॉय एंड वी हैव समथिंग टू सफर. तो इसलिए द सॉल्यूशन इज to get beyond the modes of the material nature and be situated on which platform? कौन से प्लेटफॉर्म पे सिचुएट होना है हमें? Which platform do we want? ये तीनों चीज तो हमें नहीं चाहिए. सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों नहीं चाहिए. What do we want? शुद्ध सतोगुण. सतोगुण। Not सतोगुण. सतोगुण is also problematic. सतोगुण में भी, सतोगुण इज द बेस्ट अमंग द थ्री. इन तीनों में सबसे अच्छा सतोगुण है, लेकिन सतोगुण भी परफेक्ट नहीं है. सतोगुण में भी one becomes sometimes one, because सतोगुण means he is in very good practice, he is in very good knowledge, he also has tendency to become proud. So the best place to get situated is transcend these modes. Shuddha sattva, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. ट्रांसेंडेंटल यानी कि तीनों गुणों को हम लोग ट्रांसेंड करते हैं, और वो पोजीशन किसका है? वो पोजीशन एक डिवोटी का है. हाउ ही ट्रांसेंड्स? बिकॉज ही कनेक्ट्स एवरीथिंग टू कृष्णा एंड ही इज देयरफॉर नॉट एक्टिंग इवन दो द एक्टिविटी इज सेम. एक्टिविटी तो एक डिवोटी का भी सेम ही है. डिवोटी भी ऑफिस जाता है, लेकिन उसका ऑफिस जाना जो है वो मटेरियल एक्टिविटी नहीं है. एक डिवोटी की लाइफ का कोई भी एक्टिविटी मटेरियल ही नहीं है. अगर वो खा रहा है तो वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके खाता है. अगर वो ऑफिस जाके कुछ धन कमा रहा है
और अगर ऑफ कोर्स अगर वो लीगल तरीके से और सब कुछ है ना फॉलो, तो वो मेटेरियल एक्टिविटी नहीं है। हालांकि एक्टिविटी दिखने में एक भौतिक एक्टिविटी है, भक्ति नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि अपने धन को फिर वो यूज करता है किस लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के डिवोटीज की सेवा के लिए, इसलिए उसका वो जो एक्टिविटी है वो कैसा है, डिवोशनल है। वो एक्टिविटी मेटेरियल एक्टिविटी नहीं है। तो एक डिवोटी की कोई भी एक्टिविटी मेटेरियल एक्टिविटी नहीं होती, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड ही इज अ डिवोटी, ही इज एस्टैब्लिश्ड एज अ गुड डिवोटी, है ना। So that is the goal that we want to overpower, we want to overcome the modes of these three material nature। ये जो तीनों modes हैं ये material modes हैं, पर हमें कहाँ जाना है, we have to be situated on a spiritual platform, that is Krishna conscious। and for this, how to do this, on case to case basis, हमें अपने केस टू केस बेसिस पे ये कैसे पॉसिबल है, हमें किसकी हेल्प चाहिए, वी नीड द हेल्प ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। हमें उसमें गुरु की अध्यक्षता, उनकी गाइडेंस की जरूरत है। सो देयरफॉर ऑल ऑफ अस should aspire that we should have a spiritual master and we should have a representative of spiritual master helping us। एक गुरु के प्रतिनिधि हमें मदद करें हमारी जर्नी में, and that representative is called a counselor or a mentor and so on। okay, so then we are ready to go to the next text। I don't know how to justify the time, they are all very interesting text। एक एक श्लोका को हम एक एक लेक्चर में पूरा डिस्कस कर सकते हैं, बट फिर हमारा कोर्स चलेगा 700 दिन तक, तो 700 वीक्स तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट श्लोका, हु वांट्स टू रीड? Yes, Nilesh Prabhu. Okay, please go ahead. You have a right to perform your एक श्लोक एक छोड़ दिया आपने, 46। all purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोग जो है वेदों में 4 चीजों में फंसे होते हैं। वेद पढ़ के भी वो लोग कई बार लाइफ के गोल तक नहीं पहुंच पाते। वेद में क्या चीजें हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो दे आर ऑलवेज बिजी इन दिस। कई बार वो इतना बिजी हो जाते हैं इस चीज में कि उसका पर्पस ही भूल जाते हैं कि वेदों का पर्पस क्या है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जस्ट लाइक all purposes served by small well can be at once served by great reservoir of water, similarly all the purpose of Vedas can be served by to one who knows the purpose behind them। जिसको ये वेदों का पर्पस पता है। वेदों का पर्पस क्या है? To satisfy Krishna। एंड जो ये जानता है वो फिर बाकी सारे पर्पसेस उसके क्या हो गए? पूरे हो गए, क्योंकि वो एसेंस जानता है, जो फाइनल कंक्लूजन है वो जानता है। सो ही डज नॉट हैव टू बॉदर बाकी सारी चीजों के लिए। और जो बाकी जो फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्टेड हो रहे हैं वो उसी में फंसे रह जाते हैं, बार बार उन्हीं पर्पस को ढूंढते हैं, उनको पूरा करते रह जाते हैं। वो करते करते उसमें इतना इंट्रैप्ट हो जाते हैं कि जो उसका मेन लक्ष्य है उसको याद ही नहीं रहता कि मेन पर्पस क्या है वेदों का, राइट। और फिर वो लोग क्या करते हैं? उनका बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, क्योंकि वो एक वैदिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग वैदिक नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर वो उसके एंड को नहीं, जो उसका जो फाइनल एसेंस है उसको नहीं समझ पा रहे, उनका क्या होगा? उनका भी अच्छा होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा, धीरे 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 वो धीरे धीरे अपग्रेड होंगे इस लाइफ में, कुछ थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में और अपग्रेड हो जाएंगे। ऐसे कुछ लाइफ टाइम्स के बाद वो फॉर्चुनेट होंगे तो फिर उनको भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा और फिर वो डिवोटीज बनेंगे। अल्टीमेटली लाइफ का सक्सेस होना है डिवोटी बन के। भगवान कह रहे ऑलरेडी भगवत गीता में बोल चुके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Lord is declaring very clearly, very boldly, and Lord is saying मन मना भव मत भक्तो, अब मेरा डिवोटी बनो। भगवान कह रहे साफ साफ गीता में बोल रहे, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो सीधा जाने की बजाय, भगवान का भक्ति करने की बजाय थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा ये ले ले, क्योंकि हमारा अपना एंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी है वो अभी
खत्म नहीं हो रहा। हम ये भी चाहते हैं थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा सा ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो सीधा नहीं जा रहे जहाँ पे भगवान। लेकिन एक डिवोटी है, वो क्या करता है, जो समझ जाता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वो समझ जाता है, वो क्या करता है, वो फिर बीच में ही अलग अलग स्टॉप नहीं लेता, एक एक फ्लोर पे नहीं चढ़ता, कभी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, वो सीधा लिफ्ट लेता है, 20वें फ्लोर पे जाना है, सीधा 20वें फ्लोर का लिफ्ट निकल के निकलता है। उसको ये चिंता नहीं कि अलग अलग फ्लोर पे क्या हो रहा है। जो दूसरा वो सोचता है अच्छा फर्स्ट फ्लोर में देख लूं क्या बना है खाने का, क्या कुछ अच्छा होगा, हो सकता है सेकंड फ्लोर पे देखूं, हो सकता है यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। वो सीधा जाते कहाँ, जहाँ पे उसका गोल है। ओके, क्वेश्चन प्रभु जी, कैन वी टेक लिटिल आफ्टर 10 minutes or so that we cover something? I don't think we will cover even आज भी second chapter हम कर नहीं पाएंगे because we want to anyway. So next one. So it's clear. So those who are intelligent, they will focus on the purpose behind the Vedas. इस पिछले श्लोक में अगर आप देखोगे, all the purpose, अगर हमने उस purpose को पूरा कर दिया, तो सारे जो उसके पीछे के जो वेदों के जो पर्पस हैं सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्टीमेट चीज को पूरा कर दिया। करेक्ट? सो दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट श्लोका, वेरी फेमस श्लोका। Who is going to read this? Someone who has not read so far. I would humbly request, आप सब लोग हैं यहाँ पे, are you awake or you are sleeping or you are eating or you are, oh, Yes, just now I saw Saket Prabhu after long Here, time. here, Prabhuji. You are here, I can see you, but what about others? Only out of 58, only 8 are visible. All others are invisible. All others are invisible. Yes, some people are here. Nikita Mataji is here. We can see her. Ramesh Chandra Prabhu is here. Mukesh Tanwar Mataji, she is here. Shweta Mataji is here. But Renu Mataji, Anubhav Prabhu is here. Anjali Mataji, Deepshika Mataji is here. Shilpa Mataji is here. But there's Nilesh Prabhu is here. But there are so many who are not here. Where are they? What are they doing? Are they in Bhagavad-Gita class or are they doing some multiplexing? Some कुछ टीवी भी चल रहा है क्या साथ में? I don't know. Anyway, हमें कुछ रूल बना देना चाहिए, उनको 50% अटेंडेंस मिलेगा जिनका वीडियो ऑन नहीं चलेगा। Can we make this rule? Yes? No? कोई नहीं बोल रहा है। हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी। Prabhuji, always it is not possible actually. Always it's fine. We fully understand that. We fully understand it is not possible, but at least sometimes it should be possible. मैं देखता हूँ जिन लोगों के वीडियो ऑन होते हैं हमेशा उन्हीं के ऑन होते हैं, और जिनके ऑफ होते हैं उनके हमेशा ऑफ होते हैं। so some challenge. Anyway, next shloka. We don't have time, but this is humble request. हम अटेंडेंस नहीं काटेंगे आप लोग का। Next. Who is reading 47 shloka? Yes, Shilpa Mataji, you want to try? तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। Okay, can you also read Mataji the purport? आगे। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के होते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर
कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। Okay, very interesting discussion. So जो मेन चैलेंज एक लिविंग एंटिटी के पास है वो है रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और वो बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। और उसका जो मेन रीजन है वो है जो कर्म फल उससे आसक्ति। क्योंकि कर्म का फल अगर हमारे पास रहेगा, ये पॉइंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कर्म का फल अगर हमारे पास रहेगा तो डेफिनेटली हमें उसको बार बार एंजॉय करना होगा या सफर करना होगा, एंजॉय करना होगा या सफर करना होगा, लाइक दैट। सो हियर इट सेज द लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुना नॉट बी इनएक्टिव, है ना। अगर हम सोचे कुछ एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। So not doing activity is also not possible. We have to live in this world. So what is the solution? One has to perform the prescribed duty without being attached to the result. है ना, पर ड्यूटी हमें करना है, और वो ड्यूटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? देयर आर, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि दो तरह की ड्यूटी है ना, या दो तरह का हमारा सिचुएशन। एक हमारा फंडामेंटल बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जैसे कि इन हाथों का ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी क्या है? इस शरीर को स्वस्थ रखना, इस शरीर को खिलाना, है ना। सो दैट ड्यूटी विल नेवर चेंज फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड टिल द डेथ। दैट इज द ड्यूटी, एंड द हैंड्स विल डिराइव ऑल स्ट्रेंथ फ्रॉम द बॉडी। दैट इज द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ दिस हैंड विद इन दिस टेम्पररी बॉडी। सिमिलरली एक जीव का जो एब्सोल्यूट ड्यूटी है, दैट इज टू सेटिस्फाई एंड सर्व कृष्ण। जो कर्म है, कर्म में हमेशा अपना एंजॉयमेंट और अपना सफरिंग का कहानी आता है। तो जो डिवोशनल सर्विस है, डिवोशनल सर्विस का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज सिंपली टेकिंग अवे कर्मा एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण। जब हम कर्म फल से आकर्षित नहीं होके काम कर रहे हैं, है ना, तो जैसे निष्काम कर्म बताया यहाँ पे, जब तक हमारा कर्म सकाम है, कोई ना कोई उससे हमें फाइनल आउटकम चाहिए, तब तक वो कर्म हमेशा बंधन का कारण बना रहेगा। जब तक वो बंधन को हम एक्सपीरियंस करेंगे, और एक बंधन बन जाएगा, उसको एक्सपीरियंस करते करते और एक बन जाएगा, वी विल नेवर बी एबल टू एंड दिस। सो द ओनली वे टू एंड दिस साइकिल ऑफ कर्मा is to work for Krishna, work for satisfaction of Krishna. So that work will not be the cause of bondage. बाकी कोई भी चीज, यहाँ पे बड़ा प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, परपोर्ट में लिखा है, वर्क विथ रिजल्ट्स बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड सच वर्क इज नॉट ऑस्पिशियस। कोई भी कार्य शुभ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, ये शुभ कार्य है, ये शुभ हो रहा है, ये बड़ा शुभ हो रहा है। शुभ वही है जो कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, उसका चाहे पुण्य कर्म हो, पुण्य फल हो, चाहे पाप फल हो, दोनों ही शुभ नहीं है। पुण्य भी शुभ नहीं है, बिकॉज व्हाई द रीजन इज इट हैज अ वैलिड रीजन व्हाई वी आर सेइंग वी आर नॉट अगेंस्ट पुण्य कर्म। द वैलिड रीजन इज दैट इट विल अगेन पुट अस इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो कहां से शुभ होगा? वो तो हमें दोबारा जन्म मृत्यु में फिर से डाल रहा है। तो इसलिए डिवोटीज जो है, वेरी इंटेलिजेंटली दे डोंट वांट टू बिकम द डूअर, क्योंकि जैसे ये डूअर का मेंटेलिटी, तो ये डिवोटी जो है वो डूअर की मेंटेलिटी से बचते हैं। जैसे ही बोलते हैं मैं डूअर हूँ तो मतलब इससे जो काम मैं कर रहा हूँ, मैंने मेरा किया है, आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ, इसलिए इससे जो रिजल्ट है मुझे मिलना चाहिए। और जैसे रिजल्ट मिलेगा फंस गए उसमें फिर से। अब समझ रहे हैं? अगर हम अपने आप को डूअर नहीं समझेंगे तो फिर हम रिजल्ट को क्लेम करने का इच्छा भी हमारा कम होगा। अंडरस्टैंड? एज लॉन्ग एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस में जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर आप उस प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और उस प्रोजेक्ट को बाद में अवार्ड मिलता है,
और सपोज आपका नाम लेना भूल गए वो, तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने इतना किया इसमें, दिस इज माय प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप डूअर बन जाते हो, आपको उससे मिलने वाला जो फ्रूट्स है उसकी कामना हो जाती है। और मान लो कोई और किसी के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, करेक्ट, उस और किसी के प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसमें आपको कोई, आप सुनते भी नहीं कि किस किस का नाम लिया जा रहा है, आपको उसको लेना देना ही नहीं। सो वहां पे डूअरशिप मेंटेलिटी नहीं है। हालांकि है आपके ऑफिस का ही में भी, आपके किसी प्रोजेक्ट में उसका कुछ रोल भी हो, लेकिन जहां पे आप डूअर हैं वहां पे आपको रिजल्ट चाहिए, और वही रिजल्ट हमें फंसा देता है। दैट रिजल्ट becomes the cause of bondage. So intelligent devotee will try to not have that doership mentality. So what is the formula? How we will do the thing and not be doer? That is a big question. We are doing and we are saying we are not doer. We don't want to be the doer. So it's not that we will not do the thing. We have to do the thing. जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, Lord advised that Arjuna not be inactive. भगवान कह रहे हैं इनएक्टिव नहीं होना है, but he perform his prescribed duty without being attached to the result. And then what to do? क्योंकि ड्यूटी करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा. Then we can offer that result to Krishna. In fact, that is even one step below, कि आपने जो काम किया है उसको भगवान को ऑफर करना. देखिए दो तरह का ऑफरिंग है. एक है कि जो आपने एक्टिविटी कर लिया, एक्टिविटी किया आपने अपने इच्छा से, मैंने ये एक्टिविटी किया, दिस इज माय एक्टिविटी, दिस इज माय एफर्ट, आई एम द डूअर, एंड देन यू गिव द रिजल्ट टू कृष्णा. चलो द होल रिजल्ट आई गिव टू कृष्णा. So that is one activity, one way. But the second way is कि हम कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं. अर्जुन को जो कृष्ण एडवाइस ये नहीं कर रहे कि आप फाइट करो और इसका जो रिएक्शन है, इसका जो रिजल्ट है वो मुझे दे. Krishna is saying, "Mam anusmara yuddha." You fight because to satisfy me. तो जो हाईएस्ट परफेक्शन है लाइफ का वो क्या है? टू वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, नॉट टू वर्क एंड गिव रिजल्ट टू कृष्णा. दैट इज ऑल्सो वेरी हाई. दैट इज ऑल्सो, वो भी नहीं हो सकता. हम तो उसको वो भी नहीं करना चाहते. हम तो काम करना चाहते हैं, सारा रिजल्ट खुद खाना चाहते हैं. उससे हायर क्या है कि काम करो, रिजल्ट कृष्ण को दो. और उससे भी हायर क्या है? वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा. व्हाट गिव्स कृष्णा सेटिस्फेक्शन, दैट आई विल डू. सो यू अंडरस्टैंड द गोल, द सेंट्रल पॉइंट इन द लास्ट category is Krishna. In the middle category, we are giving result to Krishna, but still I am the central point. So that is the difference. It's a very interesting topic, and we can understand. Some devotees are putting message for attendance link. I don't know. Amarjit Prabhu, are you here? I don't see him. Okay, 1 second. I'll arrange to send the Anuva Prabhu, can I request you to check with Sadanand Prabhu एक बार attendance form के लिए. Sorry, could not hear you. Okay, it's here. We saw the attendance form coming up. Okay. Okay, so next one we try to discuss a little bit from the next. Who wants to read next sloka? No one. Everyone is tired. Same hand. Deepshika Mataji. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Only the Anuvad. 48. Okay. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. So same point. You see, give the attachment to success or failure. That means we are becoming indifferent to the result. You understand? We are becoming indifferent to the result. Whatever result is, we are doing for the satisfaction, pleasure of Krishna. So that is called yoga. Yoga is not just breathing exercise. Yoga means connection with Krishna. When everything is done for the pleasure of Krishna, that's the highest connection. That is called bhakti yoga. So here it says that abandoning attachment to success and failure. Okay, next please. We are running out of time. Can I read? Yes, please go ahead.
O Dhananjaya, keep all abominable activities for far distance by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are the misers. तो यहाँ पे और क्लियरली बोला है कि जो कंजूस लोग हैं, जो अपना काम करके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे फॉरगेट दैट वी डोंट पोजेस एनीथिंग, व्हाटएवर वी आर हैविंग आल्सो, अगर मेरा एक घर भी है, मेरा एक किचन भी है, एक्चुअली द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। और हम कह रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, हम अगर कुछ कर भी रहे हैं, whatever we are able to do also is because of the mercy of the Lord. If Lord will not just give us air to breathe, can we do even one thing? We cannot. If Lord will not give us food to eat, water to drink, can we do something? हम ऐसे ही छोटे से लिविंग एंटिटी ऐसे अपने आप को सब चीज के मास्टर मान लेते हैं, हमें ये नहीं पता है कि सब चीज के लिए हम डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। So मोहन रूपा प्रभु जी, he tells a very nice situation कि ये जो कोविड का वेव था उस समय, एक आई थिंक इटली का बताते हैं, इटली में या किसी कंट्री में एक बिजनेसमैन था, ही वाज एडमिटेड एंड ही वाज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और जब ऑक्सीजन जब बाहर आया हॉस्पिटल से तो उसको उन्होंने बिल दिया, इट वाज अ बिग ह्यूज बिल। तो जो ही वाज नॉट पेइंग द बिल, वो सोच में पड़ गया, कुछ सोच रहा था। तो जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने कहा क्या हुआ सर, इज इट ए वेरी बिग बिल फॉर यू टू पे, आपके लिए बहुत बड़ा बिल है क्या ये पे करना, इज इट डिफिकल्ट? ही सेड आई कैन पे इवन all the bills of this hospital, I don't have any problem with money, but the problem I am just thinking कि आपने थोड़े दिन मुझे ऑक्सीजन दिया, इतना सारा बिल दे दिया, और लेकिन कृष्णा इज गिविंग, द लॉर्ड इज गिविंग ऑल दीज फैसिलिटीज ऑल द टाइम, हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम ये थैंक यू भी नहीं बोलते, हम ये भी नहीं कहते थैंक यू कृष्णा, यू हैव गिवन मी एयर टू ब्रीथ। डू वी थैंक कृष्णा? हमें अपना बर्थ राइट लगा के रखा है, ये मेरा बर्थ राइट है। हॉस्पिटल में जाके आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाइए और बोलिए ये मेरा बर्थ राइट है, बोलेंगे बाहर करो इनको और लोगों को दो ऑक्सीजन जो पैसा देगा, यस और नो। लेकिन जो भगवान ने ऑक्सीजन दिया है, we say it's by nature, absolutely it's by nature, but who is the master of the nature, who is controlling the nature? It is Krishna. So a devotee acknowledges कि मैं अगर कुछ कर भी रहा हूं, ये छोटा मोटा कुछ कर भी रहा हूं, even the intelligence, even this whatever to maintain this body, it is every single thing I am dependent upon Krishna. Still I want to become independent. So my very position is that I am dependent upon Krishna. This is my very position. This is my real situation. I am dependent upon Krishna, and I am saying I don't depend upon Krishna. That is the foolishness of the living entity. ये एक जीवात्मा का मूर्खता है कि सबके लिए चीज के लिए भगवान पे डिपेंडेंट है, और हम कह रहे हैं कि हम भगवान पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। यही तो मटेरियल कॉन्शियसनेस है बस। अगर यही कॉन्शियसनेस ठीक हो गई तो लाइफ की परफेक्शन है। ओके, नेक्स्ट प्लीज, मे बी दीपिका माता जी कैन कंटिन्यू रीडिंग। Okay. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Yes. So here it says by bhakti, devotional service मतलब भक्ति योगा। तो योगा मीन्स, योगा का मतलब भगवान को अप्रोच करना। अगर आप ज्ञान से कर रहे हो, बाय नॉलेज, दैट इज ज्ञान योगा। अगर आप उसको, है ना, अलग अलग प्रोसेस जिस भी तरह का योगा कर रहे हो, दैट बिकम्स दैट योगा। और अभी यहाँ पे कृष्णा जो एडवोकेट कर रहे हैं भगवद गीता में, दैट इज भक्ति योगा, द डिवोशनल सर्विस। तो जब भक्ति के प्रोसेस से हम भगवान को कनेक्ट करते हैं, है ना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड भक्ति योगा। तो बोला विच इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम बोथ गुड एंड बैड रिएक्शन विद इवन इन दिस लाइफ। और इवन ये भी इस लाइफ का भी और पहले का भी सारा। भगवान कह रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। ऑल द पाप दैट वी हैव डन फॉर ऑल द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, उसको एक सेकंड में कृष्ण माफ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा लोन लिया आपने कंपनी से, जैसे हमारे अनुभव प्रभु इंडिगो कंपनी में, आई डोंट नो, आई होप इट्स ए प्राइवेट एंटिटी। सो इन्होंने बहुत सपोज एक लोन लिया है, तो जो अकाउंट, ये तो खुद सीए हैं, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट के पीछे लगा रहेगा, ये लोन दे रहा है, उसकी किस्त मांगेगा। लेकिन कंपनी का चेयरमैन बोले कि अनुभव, वी हैव डन सच ए वंडरफुल थिंग,
You have done such a big project. I waive off all your loan. उसके एक झटके में सारा लोन खत्म. Chairman can do, or accountant cannot do. Similarly, Krishna can take away all the, क्योंकि ये जो जिस चीज को हम पाप कह रहे हैं, जिस चीज को पुण्य कह रहे हैं, who has defined it, who has made this law, that is also Krishna. If Krishna wants, he can completely change the law of material and the spirit. ये जो material world में जितने भी law हैं, that wood will always float, that the iron will sink. Suppose एक लोहे का brick है, it will always sink because that's the law of nature. Who has created that law? Is Krishna. Right? Krishna will decide one day that now the iron should, float. Of course, not in the shape of the boat. Even now the boats are sailing. That is again the law. So Krishna wants, he can change the law. He is the proprietor of every law. Okay, I don't know how much time we have. We need one more session to complete chapter 2. आज वाला तो topic अभी शुरू ही नहीं हो पाया. This is a big challenge, but I hope it makes sense क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको समझने का. It's quite a complex topic in one way. Okay, next someone can read. You want to continue? Yeah. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of the birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to the Godhead. Yes. So again, same thing, again and again in different ways. वही चीज बार बार explain किया जा रहा है कि भगवान का जो devotional service है, so that will what will it do? It will free us from the cycle of birth and death. और हम लोग कहाँ जाने के लिए ready होंगे? भगवान के धाम में, by going back home, back to Godhead, where there is no birth, where there is no death, where there is no old age and there is no disease. So भगवान के धाम में कोई hospital भी नहीं है. Why? There is no disease. कोई जाएंगे, अब जब कोई सोसाइटी लेते हो तो देखते हो हॉस्पिटल कितना दूर है, बिकॉज वी नो वी विल गेट डिजीज वन डे. तो वी चेक फर्स्ट कि हॉस्पिटल, पूछते हैं प्रभु जी यहाँ पे ले क्या प्लॉट, हाँ हॉस्पिटल इतना दूर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ये है. बट भगवान के धाम में चेक करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे प्लॉट लेना, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज नो डिजीज, नो ओल्ड एज. डू यू वांट टू गो टू सच ए प्लेस? देयर इज नो ओल्ड एज. You're always young, always happy. There is no disease. There is no anxiety, no kuntha. That is called Vaikuntha. जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है. Vaikuntha मतलब no kuntha, no problem. We want to go to such a place where there is no problem. Everyone is happy to serve Krishna. That's all. That is the Vaikuntha atmosphere. And we can have it, Vaikuntha consciousness in this life itself, by keeping Krishna as the center of our life. अगर कृष्णा हमारे जीवन के central figure हैं, तो हमारा जीवन भी वैकुंठा consciousness में हो सकता है. Here it says very beautifully, for one who has accepted, ये इसी purport में से पढ़ रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम 10th canto 14th chapter से text है यहाँ पे. Beautiful. For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation, is famous as Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of the material world is like the water contained in calf's footprint, Param Padam, or the place where there is no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is a danger at every step. So in the material world, the भौतिक जगत में, Padam Padam Hiyata Vipadam. Every step there is a danger. Every step we are creating karma for ourselves. We don't know. Any step we take, there can be great danger sitting there. But Vaikuntha, there is no danger. और बता रहे कि जो लोग, बहुत सुंदर श्लोक है, बता रहे कि जो लोग भगवान के, those who accepted the boat of the lotus feet of the Lord, जिन्होंने भगवान के चरण कमल का शेल्टर लिया है, it is like taking shelter of a boat, जो कि इस material जो ओशन है, उस कैसा हो जाएगा, जैसे कि ओशन को, अगर आपके पास कुछ बोट नहीं है, ओशन को पार करना, आप कितने भी एक्सपर्ट स्विमर हो. वरुण, डू यू नो स्विमिंग? डू यू नो स्विमिंग? नो प्रभु जी. एनीवन नो स्विमिंग?
Okay, Anuva Prabhu knows swimming. Anuva Prabhu, if there is a ocean like Atlantic Ocean, can you cross that when you are swimming? No, you may be expert swimmer, but you cannot cross an ocean. You can't cross it. So, but we need a boat, right? With a boat or a ship you can cross. But the Lord's lotus feet, taking shelter, भगवान के चरण कमल का shelter लेने का मतलब यहाँ पे कितना सुंदर बताया कि वो जो ओशन है, वो ओशन कितना बन जाता है, ओशन कितना वास्ट है. वो ओशन जो गाय के बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े के जो पांव से, आपने देखा है रेनी सीजन में उसके पांव का जो से इंप्रेशन बन जाता है खड्डा, उसके अंदर पानी भर जाता है ना. गाय के जो बछड़े का पांव का छोटा सा होता है बिल्कुल, है ना, उसमें जो पानी भर जाता है, उसको क्रॉस करना मुश्किल है क्या, उस पानी को? इज इट डिफिकल्ट? No. हाँ, इट इज सो इजी. बछड़े की जो खुर 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 क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं क्या, उसको क्रॉस करना, तो मैटेरियल वर्ल्ड को पार करना और भगवान के धाम को जाना कितना मुश्किल है. ऐसे ही मुश्किल है जैसे बहुत बड़े ओशन को क्रॉस करना. लेकिन जो लोग भगवान का डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाते हैं, those who become the devotee of Krishna and they take shelter of the lotus feet of Krishna, उनके लिए वो ocean becomes a small, just 1 second. Thank you. So that becomes like a small footprint, छोटे से बछड़े का footprint हो जाता है, उसको बड़ी आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं. So the भक्ति becomes easy. जैसे वहां पे IIT के पास में एक इंस्टीट्यूट है, बोलते हैं IES made easy, उसका नाम made. तो ये क्या है, भक्ति का प्रोसेस जो है, इट मेक्स द सक्सेस ऑफ लाइफ इजी. बाकी सारे प्रोसेसेस में अगर आप जाओगे, घूमते रह जाओ, है ना, वर्णाश्रम को फॉलो करोगे, वैदिक नॉलेज को फॉलो करोगे, घूमते रह जाओगे, कभी थोड़ा एडवांसमेंट होता जाएगा. और एडवांसमेंट तो होता जाएगा, लेकिन हर एक स्टेप पे एक डेंजर भी है, वापस फॉल डाउन हो जाना है. सो इट्स सच ए रिस्की रोड, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं, दे आर वेरी विरोशियस. हमारी सेंसेस कहाँ पर जाके आकर्षित हो जाएंगी. एक सेंस भी हमारे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक सेंस हमें जो क्या कर सकता है, बिल्कुल गिरा सकता है हमारी जर्नी में. इसलिए इट्स नॉट ए इजी वॉक, बट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स arrangement, taking shelter of the devotees, the same journey becomes very easy. Okay. So then I think we are okay. Let's quickly read next 2 shlokas and then we will end here, taking some questions. Mataji, can you continue reading 52, 53, and yeah, 52 and 53. That's all. Okay, together or Yeah, individual? together. Okay. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that has to be heard. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Okay, so here it says in the last shloka, it says that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. Samadhi ka matlab kya hai? That one has fully realized Krishna consciousness. That is, one is in full samadhi, has realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. The highest perfection of self-realization to understand that one is eternally the servitor of Krishna, and then one's only business is to discharge duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for the promotion of heavenly kingdom. Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve the result by such activities and attain conclusive knowledge
one has to carry out the orders of Krishna and his representative, the spiritual master. तो जिस श्लोक से हमने शुरू किया था वही कंक्लूजन पे दोबारा हम खत्म हो रहे हैं. याद है आपको 41 श्लोक में शुरू किया था. 41 श्लोक में भी यही था कि one has to fulfill the orders of Krishna through the spiritual master. और फोर्थ श्लोक नंबर 53 के परपोर्ट के लास्ट में आप देखेंगे यही लिखा है कि who is sure to achieve success, one who is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has to carry out the orders of Krishna or his representative. तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि यानी कि गुरु के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, and that will give us the perfection. The highest perfection is to understand one is eternally servitor of Krishna. Jivera sarupa hoye Krishner nityadas. So the only fixed position that we have is that we are always servant of Krishna. Krishna will always be the master and we will always be the servant. That is the devotee. Okay, so that's how we covered. One more last section is left. We will do it next Saturday, hopefully, Krishna willing. It's a small section, but that is a very interesting section about Sthita Pragya. Sthita Pragya, we will discuss in the next section. We can take one or two questions and then we can wind up. Are you here, Prabhus? Mataji's? Class khatam ho gaya, uth jaiye, wake up please. If you are sleeping. Okay, we have few hands up. So let's start with Yash Prabhu. Yes, Yash Prabhu, please unmute. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. You have a question or you just raise the hand because you are awake? I just raised my hand. Okay. But anyway, but it's good. But I want to tell you something, all of you, that we have this Yash Prabhu. Yash Prabhu, yesterday he received the first prize. Yash, your prize was first, right? Yes, Prabhu. So there was a big competition among the students of his college, GNIOT college, and they had 4 days of seminars on the lifestyle management. और उसमें फिर उनका कंपटीशन और लगभग 200 लोग मतलब उसमें क्विज में पार्टिसिपेट किए थे, कुछ डिफरेंट नेम्स ऑन डिफरेंट डेज, बट यश प्रभु उन 200 लोगों में से कल टॉप किए. he got first prize in, and that was more on the spiritual platform, so we can all congratulate him. Yash Prabhu, can you show yourself? We don't see you. Or you need some makeup. Ground number अंदर की. Okay. It's fine. It's fine. Yeah, I saw you before, but yeah, next time you can show yourself. Congratulations. Yeah. Yes. So you fulfill your name also. Okay. Who has question then? Anuva Prabhu, you had some question. I have a question, Guruji. Can I ask? Who is speaking? I could not know. Raj Sharma here. Okay, yes, Raj Prabhu, please go ahead. So Anubhav Prabhu, I take your question after his. Yes. Yeah, sir, मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि अगर हमें लड्डू गोपाल जी को घर पर लेके आना है तो क्या उनकी कोई विशेष विधि है लड्डू गोपाल जी को घर पे लाने की, या फिर सिंपल तरीके से हम अपने घर के फैमिली मेंबर को जिस तरीके से लाते हैं हॉस्पिटल से खुशी के साथ में, उस तरीके से लेके आ सकते हैं क्या? क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उसमें 3-4 चीजें बताई हैं कि लड्डू गोपाल को जब आप लेके आते हो तो उन्हें एक हफ्ते 3 मतलब एक दिन उन्हें अनाज के अंदर रखना पड़ता है, 2 दिन उन्हें फलों के बीच में रखना पड़ता है, 7 प्रकार के फलों के बीच में, और दूध से और चंदन से और दही एंड शहद से निलाना होता है जब उनको लेके आते, तब वो प्राण प्रतिष्ठित या शुभ माने जाते हैं, शुद्ध होते हैं. तो उसके बारे में मुझे जानना था. Okay. 3 मई को मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो मैं उस दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेके आना चाहता हूँ. Okay, very nice. So first of all,
राज जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थर्ड में इज ए वेरी ऑस्पिशियस डे, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है, और 3 मई को अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया मतलब whatever good thing you do, it will never finish, you know, it will never be shy, it will not shy, इसलिए बहुत सारी marriages इसी दिन ही होती हैं। It's so so that's a good thing you are doing. When it comes to bringing Krishna at home, so it's very nice. So I would say you can take help of some devotees. I don't know, where do you live, Prabhu? Shahadra. Shahadra, okay. So it is always good you have this program in, because what is most pleasing to Krishna, especially is Kali Yuga mein, the most pleasing to Krishna is Naam Sankirtan. So when you are bringing Laddu Gopal, you can request some devotees, they can come over to your place, they can do Naam Sankirtan, और बाकी उनके भक्तों के प्रेजेंस में आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो। You can have some, you know, nice pujari coming from temple. I can help you with some contact numbers if you want. He can come and do abhishek, और वो उसको और अच्छे विधिवत तरीके से भगवान को ना वो स्थापित कर सकते हैं। So but the most important point in this age, वो आपने जो बताया सब अच्छा है कि ग्रेन्स में और फ्रूट्स में, but the most important thing in this age is नाम संकीर्तन। So you should have some devotees जो कि नाम संकीर्तन करें, और बाद में उस डिवोटीज को आप प्रसादम सर्विस कर सकते हो, लविंगली उनको आप प्रसाद खिला सकते हो, एंड दे कैन बी सर्व्ड लाइक दैट। सो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। अभी हमारे यहाँ पे अनुभव प्रभु उन्होंने भी किया था अपने घर में डीटीज को। So the process is to have a Vaishnava, call a Vaishnava, not any pujari, but someone who is a devotee of Krishna. उनको बुला के आप, क्योंकि जब एक डिवोटी भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि माय डियर लॉर्ड प्लीज कम accept this with whatever little love and devotion we are trying to offer this service to you, please come and accept to stay in this house. So then Krishna is not forced to stay, even by some, just like Duryodhana, he did so much big arrangements, but Krishna did not want it to go to him. He wanted to go to Vidura, no, because Vidura was having that love, because you know that love is something which can purchase Krishna. So Krishna is Bhavagrahi Janardana. So he is Bhavagrahi. He accepts love. But how do we know how to serve Krishna? How do we know how to live and love Krishna? Oh, that can be done in the association of devotees. So the best way would be to have some devotees supporting you in that activity and celebrate it nicely on 3rd. Okay, Prabhu? Okay, Guruji. One more thing, Guruji. जी. First of all, I am not Guru, so I am just a servant. So yeah. जी. मैं डिवोटी घर पे बुलाने की जगह क्या मैं उनके पास खुद जा सकता हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के? Okay, yeah, that is also fine. And if you can invite at your home is also good. So you can also come to devotees if yeah, that is more practical for you. We have to also see what is practical. So you come to some devotees. I'll give you number of Sadanand Prabhu, and Sadanand Prabhu can help you with some details. अगर आपको कुछ help चाहिए उनसे, he can help you over. Is that okay? जी, थैंक यू। मैं उनके पास खुद जाकर के जिस तरीके से आपने बताया है वो सब करवा सकते हैं ना हम उसमें? Yes. कोई No problem. यहाँ पे आशीष राणा प्रभु, आशीष राणा प्रभु, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप सदानंद प्रभु का नंबर राज शर्मा जी को भेज दें? आशीष और आशीष राणा प्रभु, आर यू? Okay, you have. Yeah, sure. Thank you. Yes, next and the last question. It's already 9 o'clock. लोगों का डिनर लेट हो रहा है, और जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनके लिए तपस्या हो जाता है, भूख भी लग रहा होता है। जो बंद है वो तो चुप चुप खा लेते हैं, लेकिन जो ऑन है उनके लिए। यस प्रभु, अनुभव प्रभु, यू हैड सम क्वेश्चन, सॉरी। तो प्रभु जी आज हमने आपने जो श्लोका 1-2 बीच में आए वर्सेस जिनमें हमें वेदों के बारे में बताया गया कि वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज पे हमें नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज।
So Prabhuji, just wanted to have a clarity कि if a person whose goal is to become Krishna's devotee only and offer his life for Krishna's mercy and Krishna's cause only, then for that devotee, what is the utility of Vedas? Is there any utility of Vedas, or Vedas has no role to play in a devotee's life? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब वैदिक लिटरेचर में इतना घुमा फिरा के दिया है और जब करना ही हमें कृष्ण भक्ति हमें पता चल गया है, सो फिर वो क्या, सो वन थिंग आई वांट टू शेयर इज व्हेन वी से वैदिक नॉलेज, सो वैदिक नॉलेज इज लाइक it's a very wide term. It includes, you know, the four Vedas, the Upanishads, the Shruti, the Smriti. It includes everything like that. Same was the challenge which was given to Vyasadev, who was the compiler of the Vedas, by Narad Muni. नारद मुनि जो कि व्यासदेव जी के गुरु हैं, वो व्यासदेव ने सारे वैदिक लिटरेचर्स को कलयुग के स्टार्टिंग में कंपाइल कर लिया था। एंड व्हेन नारद मुनि केम टू हिम, व्यासदेव वाज नॉट सेटिस्फाइड। व्यासदेव ने इतना बड़ा काम करने के बाद जो है फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, उन्होंने सारे वैदिक लिटरेचर्स को कंपाइल किया था। और उसके बाद फिर नारद मुनि ने व्यासदेव, क्योंकि नारद मुनि उनके गुरु हैं, तो गुरु समझ सकते हैं कि डिसाइपल को क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट थिंग फॉर ए डिसाइपल टू डू। तो जो व्यासदेव हैं उन्होंने नारद मुनि को नारद मुनि ने व्यासदेव को गाइड किया कि आपने वैदिक लिटरेचर तो लिखा है, लेकिन जो असली एसेंस है उस वैदिक लिटरेचर का, उसको आपने ग्लोरीफाई नहीं किया, जो कि डिवोटीज को चाहिए। तो इसलिए उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया। इसलिए डिवोटीज एज सच ये सारा ही वैदिक नॉलेज है, लेकिन डिवोटीज जो है उस वैदिक नॉलेज के एसेंस पे फोकस करते हैं। सो देयरफॉर डिवोटीज चूज टू रीड श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज spotless Purana. It does not has any tinge of material mixing, or even these lower or the flowery products of the Vedas. So if you want to get pure knowledge, pure bhakti, you can read Bhagavatam and Bhagavad Gita. और जिसको वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज में, वो फिर वहीं पे फंसे रहेंगे कि इससे ये मिलेगा, धनम देही यशम देही, तो वो उसमें धन यश उसमें ही रहेंगे। लेकिन so devotees are interested in Vedic knowledge, but they are interested in the essence of the Vedic knowledge. हाँ, इसलिए डिवोटीज बैठ के वो सारे चारों वेदों को उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इतने पुराणों को, उसका जो एसेंस है, जो फ्रूट है, वैदिक लिटरेचर का जो राइपन फ्रूट है श्रीमद् भागवतम, डिवोटीज उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं। सो दैट इज प्लीजिंग टू द हार्ट ऑफ डिवोटीज। वहां पे डिवोटीज को अपना फूड मिलता है। Okay, Prabhuji. So thank you very much. And we have this daily Bhagavatam class every morning except Sunday. Sunday we go to the temple. So आप में से जो लोग चाहें, आप भी इसी लिंक पे रोज सुबह भागवतम क्लास होता है। And it starts 7 o'clock. There is small आरती 7 to 7:15 और 7:15 to 8:15 तक डेली मॉर्निंग भागवतम क्लास होता है। सो एंड जो लिंक में आपने ज्वाइन किया है, यही सेम लिंक होता है एवरी मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे। सो सेम इज द लिंक। समवन इज अगेन आस्किंग द लिंक। जो आपका ये क्लास का लिंक है, सेम लिंक को आप अगर सुबह क्लिक करेंगे, लगभग 7:15 7 बजे ही क्लिक करेंगे, तो आप भागवतम क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो पूरे वैदिक नॉलेज का जो फ्रूट है, राइपन फ्रूट, जो एसेंस है, वो मिलता है हमें श्रीमद् भागवतम में। सो एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, भगवत गीता के साथ साथ आप भागवतम को भी पढ़ सकते हैं। सेम लिंक एवरी मॉर्निंग 7 o'clock एक्सेप्ट संडे। सो इट विल नॉट बी टुमारो, इट विल बी ऑन मंडे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबने अपना अटेंडेंस भी लगा दिया है। लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। आशीष प्रभु विल हेल्प दैट थिंग। और so by this time we meet on next Saturday, आप प्लीज पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक भगवत गीता के आई थिंक 2.53 तक हमने पढ़ लिया है, 53rd श्लोका तक। सो काइंडली ट्राई टू रीड बाय योरसेल्फ। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, प्लीज कम एंड लेट्स टॉक।
to each other. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrind ki jai. Shri Gadadhar Pandit Appearance Day Maha Mahotsav ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna to everyone. Krishna. And oh, so beautiful, so cute. What's her name? Deepshika Mataji. Is she your daughter? Yes, yes. Sorry, what's her name? Arna Sharma. Arna Sharma. Okay. Very nice. Okay, so as we are closing this meeting, I am also playing one beautiful kirtan. If you want, try to आप अपना वीडियो बंद करके उसको सुनते रह सकते हैं. And again, this will be more about glories of Shri Chaitanya Mahaprabhu. है ना? तो आप सुनिएगा, मैं उसको प्ले करके छोड़ देता हूँ. Thank you. Wait, ये क्या हो रहा है? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Shapar Shadu Shiyodhama Shahoyabutari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Shapar Shadu Shiyodhama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Shapar Shadu Shiyodhama Shahoyabutari
কৃতে অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস দৈন্য আত্মনিবেদন গোকৃতে অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিখা ভক্তি প্রতিকূল অর্জন ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিখা ভক্তি প্রতিকূল অর্জন শরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহা তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ শরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহা তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ রূপ সনাতন পদে দন্তে তৃণ করি ভকতি বিনোদ করে দুহু পদ ধরি রূপ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি শিখায় শরণাগতি করো হে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি শিখায় শরণাগতি করো হে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার সাধু শিয় ধাম সহয় করি অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম শিখায় শরণাগতি ভক্তের Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.